So now let me start accounting standard. So introduction, from introduction I am going to start. Here it is saying that the present era of industrialization and globalization necessitated the study of accounting information by the various users, but the diversity in the accounting policies and in the treatment of transactions made the financial statement less meaningful and uncomparable. So देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, आप लोग अच्छे से नोट करिए, पहले ध्यान दीजिए। यहाँ से आपको देखो इस लाइन से लेकर के यहाँ तक, और बता रहा है यहाँ तक। ओके, so when you people see here, तो इट इज सेइंग दैट कि आजकल हमारे यहाँ क्या है कि बहुत तरह तरह के जो नाउ है कनेक्टेड राइट नाउ, दृष्टि, मानस, चलो ठीक है। सो ध्यान रखो आप लोग, अपनी वीडियो अभी ऑफ रखिए। ओके, सो हियर जस्ट आई एम गोइंग टू रीड इट अगेन, नाउ लिसन इट केयरफुली। Here it is saying that the present era of industrialization and globalization, तो आज का जो समय है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का, कह रहा है कि necessitated the study of accounting information, जिसकी वजह से ये जरूरी हो गया है कि we must to study of the accounting information. But कौन करता है? By the various users, because in first chapter we had already studied there are so many types of users. Each and every users must know some of the information of the accounting information of the business. But कह रहा है कि the diversity in accounting policies, each and every organization maintain their books of account according to their own policies and in the treatment of transactions. तो जब each and every business organization maintain their books of accounting by their own policy and they do the treatment according to their own, so आप खुद बताओ कि there would be any kind of comparison हो सकता है? जब सब लोग अपने मन से पॉलिसी बनाएगा, अपने मन से ट्रीटमेंट करेगा, there would not be any kind of norm or a standard. अगर कोई स्टैंडर्ड ना हो और अपनी मनमानी तरीके से कोई कुछ भी लिखे, कोई कुछ भी रिकॉर्ड करे किसी भी तरीके से, तो उसको हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे? सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट और इट विल बी लेस मीनिंगफुल। सो कह रहा है कि पॉलिसीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस मेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस मीनिंगफुल एंड अनकंपेरेबल। पहले तो हम लोग इस लाइन को, जो मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से कवर अप किया है, आप सभी लोग को इसका मतलब पहले समझना पड़ेगा, देन वी विल कंटिन्यू। सो दृष्टि, Drishti, unmute your mic. Drishti, unmute your mic. Yes. Yes, sir. So in introduction topic of the accounting standard, the area which I had covered with the red line. So what do you understand by this? Why the accounting standard is necessary? Yes, speak up. बोलिए दृष्टि। दृष्टि, is there any confusion बेटा? कोई ऐसा नहीं है, just I am not saying कि just you say the correct. What you feel after reading that para? Just go through everyone. Don't shy in speaking the answer. It doesn't matter you are saying right or wrong, but you try your level best. Okay? Then you can understand. I am here, I will explain everything, but you student must interact with each other. Na? So Drishti, have you any idea why the accounting standard is necessitated? सर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा। Okay. So यही चीज आप तुरंत बोलो, नहीं समझ में आया।
अर्श विशंबरी, अच्छा कितने लोग को आ रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। अर्श विशंबरी आप अनम्यूट किए हैं। हाँ बताइए। पलक, यस सर। हाँ बताइए। अर्श पहले बता दो, आप समझ पा रहे हो कि व्हाई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नेसेसिटेटेड? यस सर, अब समझ में आ रहा है। आ रहा है? अच्छा पलक, यू वांट Yes, टू sir. से समथिंग? सर ग्लोबलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है, आप समझो, आपने ट्राई किया, गुड गुड ट्राई। देखो इसमें कह रहा है साफ साफ, उसको समझो कि आज का जो एरा है, आज का जो टाइम है, इस समय हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो गया। यू नो दैट नाउ इट इज द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल मार्केट, वी कैन परचेज एंड सेल फ्रॉम एनीवेयर, है ना? So due to this industrialization and globalization, there is necessitated for we all people to study the accounting information. Why? Because there are various users. Okay, there are so many users of the accounting information, and each and every users want to know some information in which they having the interest. हर एक यूजर्स क्या करता है कि कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है जो उसके मतलब का होता है। बट आगे कह रहा है, बट द डाइवर्सिटी इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज। आप सोचो कि जितने इंडस्ट्री है और जितने भी बिजनेस हैं अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया में कोई अलग मेथड अप्लाई किया जा रहा है, अमेरिका में अलग किया जा रहा है, रसिया में अलग, चाइना में अलग, सब जगह अलग अलग अगर किया जा रहा है। सो दे ऑल हैविंग द डिफरेंट पॉलिसीज एंड ट्रीटमेंट और ट्रांजेक्शंस। अगर अपने अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को लोग अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स अलग हैं उन लोगों के। अब सोचो जब सब अलग अलग होगा, सो हाउ विल यू अंडरस्टैंड? आपको जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है और जो आंसर बताया जा रहा है, वही आंसर जब सभी लोगों को बताया जाएगा तभी तो सब लोग सेम आंसर लिखेगा और वो कंपैरेबल हो सकेगा कि किसका आंसर सबसे अच्छा है। बट जब सब लोग अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अपनी तरीके से मेंटेन कर रहा है और अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग प्रिंसिपल्स यूज करेगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, इट वुड बी लेस मीनिंगफुल एंड अनकंपेरेबल। इसका कोई मतलब नहीं रहेगा और हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपेयर किससे किया जाता है? जब दो चीजें सिमिलर हो, ठीक है, और उसमें कितना परफेक्शन है कितना नहीं है, तब हम कंपेयर करेंगे। जैसे आप सभी लोग क्लास 11 के स्टूडेंट हो, आप सभी लोग सेम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, सेम सिलेबस पढ़ रहे हो, सेम टॉपिक पढ़ रहे हो। अब इसके बाद जब आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसका आंसर सबसे सॉलिड होगा उसको सबसे अच्छा मार्क्स मिलेगा, है ना? तब तो हम कंपेयर कर पाएंगे, मीनिंगफुल होगा। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि आज का जो समय था है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे बिजनेस फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन, दे आर मेंटेनिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑन देयर ओन वे, जिसकी वजह से उनका जो रिजल्ट है वो कम मीनिंगफुल, लेस मीनिंगफुल हो जा रहा है और अनकंपेरेबल हो रहा है। क्योंकि हम डाउट में, हमारे यहाँ किसी अलग तरीके से मेंटेन किया गया, किसी के किसी अलग तरीके से किया गया, तो हाउ वी कैन कंपेयर? वी कैन नॉट कंपेयर। कंपैरिजन तभी होगा जब दो सेम लेवल के होंगे। ओके, कंपैरिजन आपका तभी होगा व्हेन all the firms, all the organizations, all the industry, all the countries are maintaining their books of accounts on same method, same principle, same concept, same पैटर्न पे जब मेंटेन कर रही होगी, तभी हम उसका मीनिंगफुल रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है यहां तक कि कंपैरिजन कब हो सकता है? जब सभी लोग एक जैसा मेंटेन करेंगे, और जब सब लोग अपनी मनमाना करेंगे तो फिर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को, इसी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए, टू रिमूव ऑल दीज ड्रॉबैक्स, सो देयर इज अ नीड। तो कह रहे हैं, आप देखो यहां से आप पढ़ोगे, इट विल मेक क्लियर कि अ नीड was felt to formulate certain minimum accounting standards which should be universally acceptable.
तो एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाए which should be universally acceptable so that the financial statement should possess the qualitative features of reliability, relevance, understandability and comparability. So ये कैसे possible होगा? Unless and until there are some certain minimum accounting standards, some norms होने चाहिए which must be or which should be universally acceptable, है ना? जब सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे तब जाकर वो कंपैरेबल हो पाएगा। मालूम चलेगा कि मिस्टर ए कुछ अलग मेथड बना रहा है, मिस्टर बी किसी अलग मेथड से कर रहा है, मिस्टर सी अलग मेथड से कर रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? इट विल नॉट बी पॉसिबल। So now you all are getting my point कि क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी है? बोलिए। ओके, आदित्य रस्तोगी, आदित्य, यस सर। हाँ, आपने अभी का क्लास लेक्चर सुना? अभी भी जो मैंने बताया ये अंडरलाइन सारा किया हुआ है। सर वीडियो नहीं आ रहा है। क्यों वीडियो नहीं आ रहा है? आपके ऊपर स्क्रीन पे आना चाहिए, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ सर। सबके यहाँ नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। और बताइए प्रिंस आपके यहाँ आ रहा है? प्रिंस का तो वीडियो बस शो कर रहा है। सिद्धि नरूला, सिद्धि नरूला यस सर आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है सर। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग दैट कि देयर इज अ नीड वाज फेल्ड, बता रहे क्या? नीड वाज फेल्ड टू फॉर्मुलेट व्हाट? टू फॉर्मुलेट सर्टेन मिनिमम accounting standards. Accounting standard means some methods of maintaining the books of account, standards which should be universally acceptable so that the financial statement should possess, ताकि उस financial statement में किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी फर्म का हो, सबका जो financial report हो उसमें qualitative, reliability, relevance and understandability और साथ में comparability भी हो। तो ये कब पॉसिबल है? जब कुछ हमारे पास सर्टेन नॉर्म्स होंगे जिसके बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ाई करते हो तो उसमें फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला सभी लोग अप्लाई करता है, तभी तो वो सबका रिजल्ट एक जैसा आएगा। मालूम चला उसी फॉर्मूलों को डेरिवेट कुछ अलग लोगों ने किया दूसरे तरीके से और उसका दूसरा रिजल्ट आ रहा है, किसी तीसरे ने कुछ और किया उसका रिजल्ट दूसरा आ रहा है, तो हाउ इट विल बी कंपैरेबल? नो। सो जो रूल्स जो बना हुआ है फॉर्मूला उसको सभी लोग सेम मेथड से सेम कॉन्सेप्ट पे फॉलो करते हैं, है ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो अब उसके अकॉर्डिंग सभी लोग सेम, ऐसा तो नहीं सब लोग अलग अलग अपने मन से करेगा। जो फॉर्मूला बना हुआ है, जो प्रॉपर्टीज बने हुए हैं, वो वही प्रॉपर्टी सबको अप्लाई करना है। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे सामने आज के सामने में बहुत सारे फॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री ओपन हो गए अलग अलग कंट्रीज में, और एक कंट्री कई कंट्रीज में जाकर बिजनेस कर रही है, मल्टीनेशनल, तो सब लोग अपने अकाउंट्स को अपने तरीके से रिकॉर्ड करती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं समझ पाते थे, क्योंकि सबका अपना अलग लैंग्वेज होता था, अपना अलग कॉन्सेप्ट होता था और कंपैरेबल भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो किसी अलग मेथड से किया और हम किसी अलग मेथड से। तो इसीलिए नीड वाज फेल्ट, जरूरी समझा गया कि एक कोई सर्टेन बेस हो जिसके बेसिस पर सभी कंट्रीज में जो रिकॉर्ड किया जाए ट्रांजैक्शन का वो सेम मेथड से पैटर्न पे किया जाए, जिससे उसमें रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी हो सके। ठीक है? सो दिस द consequences of this need here we can read as a result International Accounting Standard Committee was set up in the June 1973. So when International Accounting Standard Committee was set up in June 1973, क्या इसका फंक्शन था? तो कह रहा है comprising professional accounting bodies of over 75 countries. now देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये जो कमेटी बना, इस कमेटी में कितने कंट्रीज थे? ओवर 75 कंट्रीज के बॉडीज थे, अकाउंटिंग बॉडीज ऑफ ओवर 75 कंट्रीज इंक्लूडिंग द इंडियन,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICI, जो कि हमारे इंडिया की प्रोफेशनल बॉडी है जो डिग्री इशू करती है CA की, ठीक है। तो ये भी हमारा इंडिया भी उसमें इंक्लूड था और ये जो 1973 में सेटअप किया गया। सो एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया, दिस इज कॉल्ड ICWA। ये सारे कोर्स हैं ICWA वगैरह, आगे आप पढ़ोगे। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसकी डिग्री प्रोवाइड करती है, ओके। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जब हम लोगों ने देखा कि अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट मेथड डिफरेंट पॉलिसीज लोग अप्लाई कर रहे हैं, सो देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन, वी कैन नॉट कंपैरिजन। So to make it comparable, reliable, relevant and understandability, so there is a need to maintain an accounting standard on which basis internationally, okay. So international accounting standard committee was set up, okay. So now is it clear to all of you ki which committee was set up to maintain the uniformity in all countries books of account? IASC, International Accounting Standard Committee. Okay, so now Chetan, today Chetan has not joined. Manas, unmute your mic. Yes बेटा, आप बताइए आप कौन सी कमेटी को सेटअप किया गया था यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी वाज सेट अप इन जून 1973। ये क्यों सेटअप किया गया? क्योंकि इसमें कई कंट्रीज 75 कंट्रीज के अकाउंटिंग बॉडी को इन्वॉल्व किया गया, जिन लोगों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड बनाया, बेस बनाया, रूल रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया, जिसके बेसिस पर सभी कंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे सेम रूल रेगुलेशंस पे, ताकि सभी लोग यूनिवर्सली उसे एक्सेप्ट करें, ओके। नेक्स्ट, अब आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। The Institute of Chartered Accountant of India set up the Accounting Standard Board। अब हमारे यहाँ जो Institute of Chartered Accountant of India जो ICI है, इसने क्या किया? The Institute of Chartered Accountant of India set up the Accounting Standard Board. This is called ASB. When it was set up? In April 1977. Why? What is the purpose to set up this? It is saying to identify the areas of accounting where alternative and diverse practices were followed। तो ये क्यों बनाया गया? टू आइडेंटिफाई, इसलिए बनाया गया कि हम आइडेंटिफाई करें कि किस जगह पे लोग अलग अलग तरीके से डिफरेंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं। पहले उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसको सही करना। So ASB was therefore asked to drop the accounting standards in view of the legal provisions of the country. Okay, ASB submitted the draft accounting standards to Institute of Chartered Accountant of India. So up to 1st April 2010, 32 accounting standards have been issued by ICAI। 2010 तक 32 accounting standard थे। अब क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। So पहले आप लोग इतना बताइए कि यहाँ तक समझ में आया? सब लोग अपना रेज हैंड कीजिए रिएक्शन के थ्रू, जिसको इसको समझ में आ गया। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज की जरूरत नहीं है, मैंने बोला सर आवाज कि साफ नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आ रहा है? सर आवाज साफ नहीं बेटा ठीक है, आप लोग सिर्फ हैंड रेज करो, हैंड रेज करो अगर जिसको समझ में आ गया। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके साइड से। तो सिर्फ मानस को समझ में आया लग रहा है। मानस ने सिर्फ हाथ उठाया हुआ है, मानस के साथ पलक, ठीक है। और बाकी लोग को अर्श, आदित्य, अथर, प्रिंस, आप लोग
नो सर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो बाकी 3 लोगों को आया। आवाज इसका आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? नो सर कट कट के आ रहा है आवाज। बेटा नेटवर्क का कुछ इशू होगा, लेकिन मेरे साइड तो क्लियर है। मेरे साइड आप लोगों की आवाज आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कुछ। हो जाएगा, उसको छोड़ो। आप लोग स्क्रीन पे तो देख रहे हो, अभी हो जाएगा सही। यस सर। तो ठीक है, तो आप सभी लोगों को सर वीडियो इज नॉट कमिंग। बेटा इसका इट मीन्स कि ऑन योर साइड नेटवर्क एरर इज देयर ना, क्योंकि कुछ लोगों को दिख रहा है वीडियो, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, और यहाँ से स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो आपके साइड हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो नेटवर्क में, कभी कभी फ्लक्चुएट करता है। तो सही होगा तो आ जाएगा वीडियो। चलो ठीक है, मैं रीड कर लेता हूँ। तो मानस आप तो हैंड रेस किए थे ना अभी? Yes, sir. हाँ, तो मानस आपको समझ में कुछ आया यहाँ पर कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी एएसबी जो है, ये कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना चुके थे 2010 तक? अप्रैल 1 2010 में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड किया था आईसीआई ने? 32। 32. 32। यस। तो ये देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। ये सब नॉर्म्स होते हैं, यानी कि एक इसमें गाइडलाइन दिए जाते हैं कि कैसे किसी बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करना है, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस मेथड से रिकॉर्ड करना है और कैसे करना है। और ये सभी लोगों के द्वारा, यानी जितनी भी कंट्रीज है, ऑल कंट्रीज शुड अप्लाई द सेम मेथड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। वी प्रिपेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको शुरुआत में बताया कि अलग अलग इंडस्ट्री और ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी कंट्रीज अपने हिसाब से मेंटेन करती थी। तो बाद में ये सोचा गया कि अगर ऐसा ही होगा तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे और रिजल्ट कैसे जान पाएंगे। तो इसके लिए इन लोगों ने कुछ फील किया कि कुछ ऐसा होना चाहिए, एक कॉमन टू ऑल, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो सभी लोग अप्लाई करें, जिससे हम कंपेयर कर सके, सबका रिजल्ट समझ सके, रिलायबल हो सके। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इट वाज सेट अप इन जून 1973, और दिस कमेटी इंक्लूड्स द अकाउंटिंग बॉडी ओवर 75 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडियन, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीआई, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये 2 इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर इंक्लूड थे। ठीक है, इन लोगों का मेन काम क्या था? तो बता रहा है कि जो हमारे इंडिया का जो आईसीआई बॉडी था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सेटअप द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसने एक एएसबी सेटअप किया। कब किया? अप्रैल 1977 में। किस लिए किया? टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ अकाउंटिंग। उस एरिया को आइडेंटिफाई किया वेयर अल्टरनेटिव एंड डाइवर्स प्रैक्टिसेस वर फॉलोड। यानी जो एएसबी जो ऊपर बनाया गया है कमेटी के थ्रू, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, कुछ अलग फॉलो किया जा रहा है। तो पहले इसने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और बाद में एएसबी से कहा गया कि आप एक नया ड्राफ्ट करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि सभी लोग सेम मेथड को फॉलो करें। तो यहाँ बता रहा है ASB was therefore asked to drop the accounting standard in view of legal provision of the country। यानी जिस कंट्री में, यानी ASB हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, इससे कहा गया कि लीगल प्रोविजन के थ्रू, मतलब सभी लोगों के लिए मैंडेटरी होगा, इसी मेथड से करेगा। तो ASB सबमिटेड द ड्राफ्ट। ASB किसको सबमिट करती है? ICI को करती है। फिर ICI क्या करता है? पब्लिकली इशू करता है। तो कई हैंड है। पहले ASB मतलब कि गाइडलाइन बनाती है, और गाइडलाइन बनाकर ICI को देती है अप्रूव होने के लिए, फिर ICI सबको फिर पब्लिश करता है। तो ASB सबमिटेड द ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। So up to 1st April 2010, 32 accounting standard have been issued by ICI। तो ICI ने फिर इशू किया, क्योंकि ASB जो है उसका सेटअप किसने किया है? इसका सेटअप किसने किया है ASB का? कौन बताएगा? बताइए, कौन बताएगा? पलक, who has set the ASB? पलक, unmute your mic. सर ICAI।
यस, ICAI ने किया है, वेरी गुड। कब किया है? सर 1972। 7 अच्छा 1977, देखो ये है ना। यस सर। हाँ, तो चलो अब हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं इसका। देखो आज इसी को समझाने में, देखो होता है क्या ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह ये सब केवल डायरेक्टली हम मीनिंग पढ़ाने लगते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। पहले इसको वैसे भी लगेगा, लेकिन पहले उसका मतलब समझो कि क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको लिंक कराया कि मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, उसी प्रॉपर्टी के बेस पे आप सॉल्व करते हो। तो सभी लोग सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा, तभी कंपेयर कर पाओगे किसका सही है किसका गलत है। ठीक इसी तरह अकाउंटिंग में भी एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो यहाँ देखो मीनिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यू विल रीड द मीनिंग। So it is saying that accounting standard, जिसको शॉर्ट में हम लोग AS भी कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटेन स्टेटमेंट्स। देखो ये याद कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटेन स्टेटमेंट्स ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस। ये क्या है? एक रिटेन स्टेटमेंट ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स and guidelines issued by the accounting body of the country। तो कंट्री किसी भी कंट्री का अकाउंटिंग बॉडी हो सकता है, तो हम अपने इंडिया का लेकर चल रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या बता रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीनिंग में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? रिटेन स्टेटमेंट है किस चीज का? of uniform accounting rules and guidelines issued by, किसने इशू किया ये गाइडलाइन और रूल? issued by the accounting body of the country, that is ICI, Institute of Chartered Accountant of India। क्यों इशू किया है? to be followed, इसको फॉलो करने के लिए। कौन फॉलो करेगा और कब? while preparing and presenting the financial statement। जिस समय एक अकाउंटेंट किसी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होगा, प्रेजेंट कर रहा होगा, तो उस समय इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वो फॉलो करेगा। जैसा उसमें नॉर्म्स लिखा होगा हर चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, उसी रूल के अकॉर्डिंग, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड करेगा। आगे कह रहा है दिस अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ओके, these accounting rules and procedures are related to measurement, valuation, disclosure of accounting information in the financial statement। तो ये क्या रूल है, किस टाइप का है? तो कह रहा है these accounting rules and procedures are किससे रिलेटेड है? measurement, यानी measurement what? The value of the accounting transactions which can be measured in terms of money, valuation, कैसे valuation किया जाएगा closing stock वगैरह का, ठीक है। disclosure of the accounting information, तो फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल है कि फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये सब एएस के थ्रू, जितना प्रिंसिपल्स पढ़े हैं हम लोग, ये सब एएस में दिया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कहा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिटेन स्टेटमेंट ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस issued by the accounting body of the country। and country कौन है जो हमारे यहाँ की अकाउंटिंग बॉडी? ICI। क्यों किया गया? to be followed while preparing and presenting the financial statement। तो सबको मीनिंग पहले लर्न हुआ कि नहीं? क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें पहले पढ़ाने सा नहीं है, पहले अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड की मीनिंग और ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए सभी को। सो जस्ट आई एम गोइंग टू आस्क